Hello everyone. We are going to start a new initiative. Let's learn today. Today we are going to discuss class 10 chapter number 5. Topic is arithmetic progression. Arithmetic progression क्या चीज है? At first I am write some series of numbers there. I write there 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. First number, that is the first term, here it is 2. इस फर्स्ट टर्म को हम पहले मानते हैं दिस इज ए. So according to the second term 5, it is A2. ये जो A है we can write it also A1. These are the number of terms. First number, second number, third number, fourth number, fifth number, sixth number, seventh number and so on. सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर्स जो मैंने लिखा है ये किसी एक सीरीज में हमने लिखा है. अगर हम ध्यान से देखें एवरी नंबर इज मोर देन 3 देन इट्स प्रीसीडिंग नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. इफ यू टेक 11 it is 3 more than the 8. If you take 14 it is 3 more than the 11. ऐसे कोई एक पर्टिकुलर नंबर के एडिशन पे नेक्स्ट नंबर तैयार होता है और उसी नंबर की एक हम सीरीज बनाते हैं, देन वी कैन से इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज. मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमें जानना है, इज इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल दैट हम इसको बार बार हिसाब करके देखें जे हियर इट इज डिफरेंस 3. फॉर दिस रीजन देयर इज another way that is known as D. D is common difference. क्वेश्चन इज दैट ये कॉमन डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल, इसके नाम से हमें पता चलता है कॉमन डिफरेंस. इनके अंदर जो डिफरेंसेस है एवरी स्टेट द डिफरेंस इज कॉमन. इफ वी फाइंड आउट हियर 5 minus 2 3, 8 minus 5 3, 11 minus 8 3 and so on. So that means common difference is same for all. Then we conclude that the given series of number it is in arithmetic progression. arithmetic progression पे ये नंबर है. इन चीज को दिखाने के लिए पहले हम देखेंगे ये टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज A1, दिस इज A2 सेकेंड टर्म, दिस इज A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन. ये नंबर तैयार कैसे होता है? मैंने तो एक सीधा साधा 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 ऐसे एक नंबर लिया है. हमारी एक्सरसाइज में इससे और भी टफेस्ट नंबर डेसिमल में, अंडर रूट में काफी सारी चीज आ सकता है. देन व्हाट विल डू? लेट्स द फर्स्ट टर्म that is A equal to 2. इस A को हम A1 भी डिनोट करेंगे. जो पहला नंबर होगा वो मेरा फर्स्ट टर्म है.
सेकेंड टर्म A2 सीरीज में देख के वी कैन फाइंड आउट दैट इस सीरीज से वी कैन फाइंड आउट इट इज 5, बट हाउ मैथमेटिकली वी कैन डू इट? A plus the common difference D for this series, हमने यहां पे इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस हमें D पता है, लेकिन व्हाट इज D? हाउ टू फाइंड आउट द D? To find out the D, it is always A2 minus A1, otherwise A3 minus A2, otherwise A4 minus A3, and so on. Except the first term, take any term and then subtract its preceding term. So if we go for here A2, here A2 is 5 minus A1 2, it gives 3. Then A3 8 minus 5, it gives 3. Then A4 11 minus A3 8, it gives 3. So every time we find out the D is 3. That means we find out the common difference D, it is 3. Now A2 equal to A plus D. What happened? A is 2, we know it, and D is 3, and the result is 5, which is the second number of the series. What's about third term? A3 A plus 2D. Question is that why it is 2D? पहले D था, अगले बार 2D हो गया. This is procedure to find out the term of every series. The number of term here it is 3, and if we subtract 1 from the number of terms, we can find out the multiple of D. D में क्या multiple होगा? So it is 2D. That means 2 plus 2 in D. Value of D is 3. It gives 2 plus 6 8. Here 8 is the third term. According to this, if we go for the A7, that is the seventh term, it gives A7. What is A7? Very similar. At first we write A, then we add 7 minus 1, that is 6D. हमें 1 माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म से. सो 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D is 3. It gives 2 plus 18. This equal to 20, and here it is same as A7. In this way, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस सीरीज को नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी जगह में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दैट इन दिस वे वी फाइंड आउट सेवेंथ टर्म ऑफ द AP. हमारे पास ये सेवेंथ के बाद 8 9 10 11 एंड सो ऑन कंटिन्यूएशन इसकी रह जाएगा. तो लेट्स इट इज द nth टर्म. n में भी एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. तो हमें उस चीज को फाइंड आउट करना है. अगर हमारे पास ऐसे लंबे सीरीज या इस नंबर काफी बड़ा है, डिवीजन में है, या इट इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट, देन वी नीड अ जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सीरीज ऑफ द टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वॉट एवर द क्वेश्चन आस्किंग यू, जो भी हमें पूछा जाएगा जी इस हिसाब से हमें क्या करना है. अकॉर्डिंग टू दैट टू फाइंड आउट दिस, नाउ वी अगर यहाँ पे ए सेवेंथ टर्म है, सपोज मान के चलिए मैं यहाँ पे एक टर्म ले रहा हूं A12. व्हाट इज दैट? दैट इज 12th टर्म. A12, very simple, we write A plus 12. Term number is 12, so 12 minus 1,
that is 11 into common difference d is 3, so it's become value of a is 2 plus 33 and it gives 35. So if the number of terms is an, that is the nth term, it is nth term an, a प्लस हमने ये बताया था जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा, here the number of terms is n, we subtract 1 from this n and then multiply d. Put the value a is this equal to 2 plus value of n, nth term, it's become n minus 1 and d. If we take again a5, then we replace n 5 here and d 3 here, so it's become 2 plus 5 minus 1, 4 into 3, 4 3s are 12, 12 plus 2, 14. This is the fifth term. So what is the conclusion? Conclusion is that if we go for nth term, that is an, so an equal to a plus n minus 1 multiply by d. This is the general form to find out the number of terms in a series of AP. If the series in AP, then we apply this formula an equal to a plus n minus 1 into d. This an equal to a plus n minus 1 into d जनरल फॉर्मूला AP की फाइंड आउट करने के लिए, तो इस जनरल फॉर्मूला को यूज करके हम कोई भी नंबर जो हमारी क्वेश्चंस में होगा उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। उस चीज को हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप देखिए इसमें एक दो एग्जांपल देखिए। सपोज किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू -2 और क्वेश्चन है फाइंड फास्ट 4 टर्म्स। पहले 4 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, वी नो d here and a here. फर्स्ट टर्म this equal to a 1 equal to a equal to 2, ये जो फर्स्ट a दिया हुआ है ये हमारी फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म equal to a2 equal to a plus d equal to 2 plus bracket -2 and gives 0. Third term a3 a plus 2d a2 plus 2 into d की वैल्यू -2, it gives 2 minus 4, this equal to -2. Fourth term a4, this equal to a plus 3d 2 plus 3 into -2, 2 plus -6 equal to -4. So these are the terms of AP. And if we write AP, what is the series of the number? It is 2, 0, -2, -4 and so on. So this series, पहले वाला जो सीरीज था मेरे पास वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। इस वाले एग्जांपल में दिस सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर सीरीज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव नंबर सीरीज, स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव 2, 0, -2, -4 and so on. Another example, एक कॉमन क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर में है। उस क्वेश्चन में जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं उसको फाइंड आउट करते हुए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। उस क्वेश्चन में सपोज आपको ये दिया गया है √3, √6, √9, √12 is in AP, a question mark.
ये एपी में है इस सीरीज में। वेरी सिंपल। जो हमने नोटिस किया है, बच्चे कहते हैं सर इट इज इन एपी, व्हाई? बोले इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और डी मैंने पहले ही बताया था, टू फाइंड आउट द डी यू हैव टू सबट्रैक्ट द प्रीसीडिंग नंबर फ्रॉम इट्स नेक्स्ट नंबर। तो here it is a1, a2, a3, a4, then a2 minus a1 equal to root 6 minus root 3 equal to root 3, d equal to a3 minus a2 equal to root 9 minus root 6 equal to root 3। बच्चे कहते हैं जे ये सारे में d root 3 आ रहा है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? ये अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 ये सबट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि these are not the same category, so we cannot subtract from number under root 6 under root minus 3, because a very simple example, आपके पास 15 मार्बल्स है और 10 कैट है। अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करने के लिए बोलूं तो 15 माइनस 10 5 तो आ जाएगा। देन इसकी यहाँ पे यूनिट क्या आएगा? यहाँ पे यूनिट में था मार्बल, यहाँ पे यूनिट में है कैट, तो 15 माइनस 10 5 तो आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूं? कैट लिखूं या मार्बल लिखूं? नहीं हो सकता। सो दिस इज रॉन्ग। अगर इसकी डी फाइंड आउट करना है, सो इट्स एज यूजुअल सेम, रूट 6 माइनस रूट 3 यही रहेगा डी। इसमें रूट 9 वी नो, रूट 9 इक्वल टू 3 माइनस रूट 6, इसका डी यही रहेगा। सो डी इज नॉट कॉमन इन ईच केस, देयरफॉर the given series of numbers not in AP, ये AP में नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रूट 8, रूट 18, रूट 32, रूट 50, दिस सीरीज ऑफ नंबर इज इट ऑन इन एपी? ये एपी में है। तो इसके लिए एट फर्स्ट वी ब्रेक रूट 8, इट्स बिकम 2 रूट 2, बिकॉज root 8 equal to 2 into 2 into 2, from 2 to 2 we take out 1 2 and it's become 2 root 2. Similarly root 18, it's also 2 into 3 into 3, that means 3 root 2. Root 32 equal to 4 root 2 and root 50 equal to 5 root 2. Now this number of series turns into this 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2 and 5 root 2. Now if I try to find out the d equal to 3 root 2 minus 2 root 2, it's become root 2. Now this time we can subtract, because under root में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो both are the same category. D for the second case 4 root 2 minus 3 root 2, it's become root 2. D for the third case 5 root 2 minus 4 root 2, it's become root 2. So every case we find out the D is root 2 and root 2. So we can say the given number of series are in AP. ये AP में है। इन दिस वे इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है
उस क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सरसाइज में चैप्टर 1 की 5.1 में ऐसे ही कुछ a इक्वल टू d इक्वल टू दिया होगा, किसी जगह a में आपको डेसिमल नंबर फाइंड आउट हो सकता है और d भी डेसिमल में है। डोंट वरी, जस्ट गिव द सिंपल मैथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती नहीं होना चाहिए और यू हैव टू यूज द जनरल फार्मूला जो हमने बताया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट। ये 5.1 के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, इस हिसाब से इन चीज की हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।